Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry Ka Bachchan. Today we are going to move ahead for third lecture, that is of thermodynamics. So thermodynamics we had already done the introductory part. आज मैं आपको करा रहा हूँ दो simple derivations जिसके ऊपर of course numericals are being asked. So first one is PV type of work, which we also call it irreversible work. Now if you remember from my last lecture, irreversible means that the difference between the driving force and the opposing force is large. So if we have to understand this, let's take one vessel and inside that there is a gas. Okay? And over here piston is there. This is your piston. This is your opposing force. This is your driving force of the gas. This is the pressure exerted by the gas. And this is your external pressure or atmospheric pressure. Okay? So PV type of work means the work done due to pressure and volume. अब क्या होता है, ये प्रेशर अगर बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, so we all know what will happen. The piston will go in which direction? Piston is going to move in upward direction. मतलब पहले piston का height अगर हम बोलेंगे that over here this much position or this much the place is being occupied by this vessel, और थोड़ी देर के बाद it has gone up. That means there is some displacement which we are going to call it what? Which we are going to call it as H2. थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं. H2 minus H1 is the displacement. Why this displacement has occurred? This displacement has occurred because the pressure exerted by the gas is greater than the external pressure. तो पिस्टन ऊपर की तरफ गया. पिस्टन अगर ऊपर की तरफ गया तो उसको क्या बोलते हैं? Expansion. Right, expansion due to this gas. So we all know कि work done is equal to force multiplied by displacement. How much is the displacement if you see? That is H2 minus H1. Displacement जितना भी हुआ, जितना भी piston ऊपर गया, it's like the vessel of your pressure cooker. ऊपर गई ना? When the pressure inside is going to be greater than the external pressure. So that is the first thing we all have to know it. Second thing we all know that pressure is equal to force upon area. So therefore this force is equal to, please remember this pressure is external multiplied by area. तो ये आपका हो गया क्या पार्ट? सेकेंड. अब 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोर्स दिया हुआ है. फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करो तो क्या हो गया? वर्क डन इज इक्वल टू हो गया एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया इनटू चेंज इन हाइट. एवरीवन नोज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट इज वॉल्यूम. सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू चेंज इन हाइट विल बी चेंज इन वॉल्यूम. सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस क्यों अभी बता रहा हूं, पी एक्सटर्नल, और ये हो गया आपका डेल्टा वी, राइट. Or we can also write W is equal to minus P external V2 minus V1. तो ये आपका work done which we call it PV type of work और irreversible work हुआ. So पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है भाई, why change in volume? Everyone knows volume means क्या होता है? Volume means होता है length into breadth into height. But यहाँ height नहीं है. There is a change in height. If there is a change in height, there is going to be a change in volume. And what is delta V? Final volume minus initial volume. ठीक है. उसके बाद आता है आपका minus sign. Minus sign when we are talking about, we all have to know that minus sign is being given to the work done when the work done is due to expansion. And everyone knows expansion is taking place. And whenever piston is going in the upward direction, that is work is done by the system
on the surroundings. Whenever work is done by the system on the surroundings, work done is going to be negative. So very easy. I hope सबको याद रहेगा क्यों माइनस साइन डाला है. और इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT. यही फॉर्मूले को और एक्सपेंड करते हैं. एवरीवन नोस PV इज इक्वल टू NRT. सो अगर PV इज इक्वल टू NRT होता है तो P डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा NGRT. R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. T क्या है, टेम्परेचर. व्हाट इज डेल्टा NG? डेल्टा NG इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous reactants. सो डेल्टा NG याद रखना है. डेल्टा NG आपका क्या है, डेल्टा NG इज नंबर ऑफ moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. Underline the word gaseous. ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं. gaseous, no solid, no liquid. दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा NG. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ G का मतलब है गैसियस, एंड दैट इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज इट इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. तो दोनों फॉर्मूलेस क्लियर हो गए एंड दिस इज कॉल्ड PV टाइप ऑफ वर्क. सो प्लीज कॉपी इट डाउन. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड डेरिवेशन व्हिच वी कॉल इट W max. W max वर्ड कहां पे आता है, सोचो सोचो सोचो. मैक्सिमम वर्क इज डन ड्यू टू विच प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस. व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड द ऑपोजिंग फोर्स इज इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल. मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा है लेकिन इतना 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 स्लो जा रहा है that work done is going to be maximum. That means whatever amount of energy is being used, that is being converted into work done only, and that's why it is called a hypothetical process. ठीक है. तो दूसरा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिराइव वर्क डन ड्यू टू IRE. IRE का फुल फॉर्म, IRE को आयर बोलते हैं. आयर मतलब इंग्लिश में होता है एंग्री, लेकिन वो वर्ड खाली इंग्लिश के लिए याद रखो. केमिस्ट्री के लिए इसका फुल फॉर्म है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन. ये कोड वर्ड याद रखो, IRE. जब भी IRE आएगा समझ जाना W max का ही फॉर्मूला लगाना है, पहला वाला मत लगा देना. ऑफ एन आइडियल गैस, राइट, हाइपोथेटिकल प्रोसेस. तो देखते हैं क्या होता है. यहां पे भी हम लोग एक वेसल लेते हैं भाई, और वेसल के अंदर क्या है, वेसल के अंदर ऑफ कोर्स गैस इज देयर, एंड दिस गैस is going to exert some pressure. It also has some driving force of course. And यहाँ पे आपका पिस्टन है. यहाँ पे इस बार आपका एक्सटर्नल प्रेशर और अंदर के प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सो ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो वी आर गोइंग टू कॉल इट P minus DP. Why P minus DP? Because the difference between the two pressure or the difference between the two forces are very 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 less. So this is being called P minus DP. ठीक है. तो एज वी नो, क्या मालूम है हमको, वी नो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. ये एक जनरल इक्वेशन है जो हमने लास्ट डिराइव में देखा. तो ये एक जनरल इक्वेशन, लेकिन ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है. वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड आइसोथर्मल है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, रिवर्सिबल है एंड एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन एक्सपेंशन दिख नहीं रहा है क्योंकि द डिफरेंस इज वेरी 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 लेस. सो एज द प्रोसेस इज isothermal reversible expansion, isothermal reversible expansion. So work done is going to be there, but बहुत ही छोटा, is equal to external pressure क्या है भाई, P minus dP है, तो उसको लिख देंगे P minus dP, and change in volume is also going to be very very small. तो जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो dW is equal to क्या हो गया, माइनस PdV प्लस dP अब सबको मालूम है dP is very very small, dV is very very small, so the product of dP and dV is going to be very 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 small. Can we ignore it? Of course we have to ignore it. Ignore किया इसको ignore किया तो हमको मिला TW is equal to minus PdV.
तो ये आपका एक DW फॉर्म में फॉर्मूला आ गया। नाउ वी ऑल नो फॉर एन आइडियल गैस, PV इज इक्वल टू nRT। तो P क्या हो गया भाई, nRT अपॉन V हो गया, बराबर है। सो PV इज इक्वल टू nRT, P इज इक्वल टू nRT बाय V हो गया। 1 and 2 P का वैल्यू वहां पे पुटअप कर दो, क्या हो गया हमारे पास, हमारे पास हो गया DW इज इक्वल टू माइनस nRT, राइट, DV अपॉन V। ध्यान से देखो, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट किया, DW which is going from 0 to max is equal to integration of minus nRT dV by V which is going from V1 to V2। ये 0 से मैक्स जा रहा है, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट मैक्स, तो ये हो जाएगा आपका W max। पहले यहां तक देख लो, देन आई विल गो अहेड राइट एंड राइट ऑन द टॉप। तो वापस देख लो, over here the pressure exerted by the gas is P, but outside pressure is very less difference, that's why P minus dP लिखा है। और जनरल फॉर्मूले के अंदर हमने पुटअप कर दिया एक्सटर्नल प्रेशर को, सबको ये सिंपल समझ में आ गया होगा। एंड वंस यू गेट दिस, वी ऑल नो PV इज इक्वल टू nRT होता है जनरल गैस आइडियल गैस इक्वेशन। वहां से प्रेशर का वैल्यू आया, प्रेशर का वैल्यू अंदर डाला, अंदर डालने के बाद वी हैड डन द इंटीग्रेशन पार्ट। और अगर ये आप याद भी कर लोगे तो बहुत इजी है, राइट, कि इंटीग्रेशन अगर आपने अभी तक नहीं किया है कोई बात नहीं, जस्ट एक ही स्टेप याद रखना है, सो दैट इज नॉट अ बिग थिंग। मेन तो हमको फाइनल फॉर्मूला हमारे एंट्रेंस के लिए यूज करना है, एंड फॉर थ्योरी ऑल्सो वी हैव टू यूज दैट। सो आई होप सबने वो कॉपी कर लिया। ऊपर का पार्ट मैं मिटा देता हूं, ठीक है, यहां तक अपने क्लियर कर देते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये गया 0 टू मैक्स, तो इसको लिख देंगे W max। N is the number of moles of an ideal gas, so constant है। R is a universal gas constant, वो भी constant है। T as the process is isothermal, so temperature भी constant है। In integration what is constant is going to come out, और ये बच गया आपके पास dV by V, लोअर लिमिट V1। अब इसको log to the base E में कन्वर्ट कर देते हैं, तो log to the base E याद रखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस nRT log to the base E V2 अपर लिमिट माइनस log to the base E V1। नहीं किया इंटीग्रेशन, सो कोई बात नहीं, अभी के लिए एक पॉइंट याद रहेगा। और log को अगर हमको माइनस दिया हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सबको मालूम है, इज इक्वल टू माइनस nRT log to the base E V2 डिवाइडेड बाय V1। ठीक है, तो ये हो गया आपका W max। अब सबको याद रखना है, यहाँ पे मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, log E का फॉर्मूला भूलना नहीं है। log E इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय log टू द बेस 10। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हमारा W max इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 बाय V1। What is W max? Maximum work due to isothermal reversible expansion of an ideal gas. Minus 2.303 is the constant which you got it from log to the base E. N is the number of moles of an ideal gas, that is given weight divided by its molecular weight. R is the universal gas constant जो आपको लेना है 8.314 joules per Kelvin per mole. Temperature ज्यादातर 298 Kelvin दिया होगा, that is room temperature. Okay, 25 degrees Celsius. Log to the base 10, final volume divided by initial volume. Correct? Once you understand this, so it is going to be the very easy part, that is going to be, we all know P1 V1 is equal to P2 V2 at constant temperature। कौन सा लॉ है सोचो, कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी आर गोइंग टू फाइंड दैट P1 V1 और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अब V2 बाय V1 हमको आपको एक और फॉर्मूला
यहाँ पे डालने का है। तो V2 by V1 क्या हो गया भाई? V2 by V1 कैन बी इक्वल टू P1 by P2। इस वाले को यहाँ डाल दो तो एक और फॉर्मूला आपको मिल गया। क्या मिल गया? W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 by P2। तो अगर आपको वॉल्यूम्स दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर प्रेशर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सो डोंट फॉरगेट दिस। And that completes the second derivation, which we call it W max. I hope W max सबको समझ में आया। W max एक कार आपको समझ में आ गया, then it is going to help you a lot in solving numericals. Please take a screenshot, और कोई भी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते। Now let's go to the last part of the lecture today, and that is called enthalpy. एंथैल्पी टर्म सबने कहीं ना कहीं 11th में सुनी है, तो भी मैं आपको डेप्थ में बता देता हूं। एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय H। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए दैट व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी इज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। कितना हीट कंटेंट है सिस्टम के अंदर, उसको बोलते हैं एंथैल्पी। पॉइंट नंबर 2 याद रखना है, H इज इक्वल टू U प्लस PV। व्हाट इज H? एंथैल्पी। व्हाट इज U? इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज PV? PV टाइप ऑफ वर्क। तो क्या डिफाइन करेंगे एंथैल्पी को? एंथैल्पी इज डिफाइंड एज the total energy of the system, total energy of the system including PV type of work. So including PV type of work. Internal energy क्या होता है? Internal energy is the total energy of the system excluding PV type of work. माइनस हो गया। So दोनों को कोरिलेट कर दो। अगर इंटरनल एनर्जी आपने पहले वीडियो में देखा हुआ है तो सो इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पूरी एनर्जी इंक्लूडिंग इवन द पीवी टाइप ऑफ वर्क, द वर्क डन बाय प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, वी ऑल नो पॉइंट नंबर 3, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। भाई एंथैल्पी क्या है आपका? इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हो गया भाई? डेल्टा H इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब जितना भी हीट कंटेंट प्रोडक्ट्स का है, 2 मतलब प्रोडक्ट्स माइनस हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, दोनों को माइनस करते हैं तो डेल्टा H मिलता है। ठीक है, सो दैट इज स्टेट फंक्शन। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। फिर आपको याद रखना है कि अगर आपका डेल्टा H का आंसर आया पॉजिटिव, इसका मतलब रिएक्शन क्या है? एंडो है। और अगर डेल्टा H का आंसर आया नेगेटिव तो आपका आंसर क्या है? एक्सोथर्मिक है। सो इनिशियली आपको ये 4 चीजें याद रखनी है विथ रिस्पेक्ट टू एंथैल्पी। फर्स्ट थिंग, इट्स डिनोटेड बाय H। H का फुल फॉर्म होता है हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, द हीट विच इज बीइंग प्रेजेंट इन द सिस्टम। दूसरा आपको बताया H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो H इज इक्वल टू U प्लस PV इज फॉर डेफिनेशन दैट इट इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग PV टाइप ऑफ वर्क। थर्ड है एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसको बोलते हैं समेशन, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आया तो एंडोथर्मिक है, नेगेटिव में आया तो एक्सोथर्मिक है। Is it clear? So these are the 4 points. इस वाले पार्ट को हम लोग एक्सप्रेशन फॉर्म में भी वापस लिखेंगे, जिसका आपको आंसर आएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। बट वो अभी हम लोग डिराइव करेंगे थोड़ी देर में। सो प्लीज रिमेंबर दैट ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, ये वाला नहीं, ये तो खाली डेफिनेशन के लिए है। सो
हाउ यू गॉट दैट 2 मिनट में मालूम पड़ेगा. प्लीज कॉपी डाउन. Okay, now let's talk about expressions for enthalpy change. What different expressions are there for enthalpy change? तो पहले मैं आपको देता हूं at constant pressure. Constant pressure पे क्या होता है देखते हैं. ठीक है. So let us consider there is enthalpy 1 which is equal to U1 plus P1 V1. That is from the definition. And we all know then it will be H2 is equal to U2 plus P2 V2. That is from definition of enthalpy. ये दोनों हमको पॉइंट्स का मालूम पड़ रहे हैं. अब अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं A और इसको कंसिडर करता हूं B, so B minus A we get क्या मिलेगा देखो. H2 minus H1 is equal to U2 minus U1 plus P2 V2 minus P1 V1. But we are considering that the whole process is taking place at constant pressure. So at constant pressure क्या हो जाएगा? At constant pressure P1 is equal to P2, let it be equal to P. तो क्या हो जाएगा आपका ऊपर वाला एक्सप्रेशन? H2 minus H1 is equal to U2 minus U1 plus P V2 minus V1. I hope clear to everyone. क्योंकि दोनों तो सेम है P. इसका मतलब H2 minus H1 को क्या बोलते हैं भाई? डेल्टा H. इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा U. और इसको क्या बोलते हैं? P डेल्टा V. And this is what you have to know. That is change in enthalpy is equal to change in internal energy plus constant pressure multiplied by change in volume को बोलते हैं enthalpy change at constant pressure, जो एक जनरल इक्वेशन है क्योंकि प्रेशर ज्यादातर कांस्टेंट रहता है. तो ये आपको याद ही रखना. अब याद रखो डेल्टा H को बुक्स में QP भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं QV और इसको आप लिख सकते हो डेल्टा NRT. तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये भी याद रखना. दिस इज QP, heat which is going to be present at constant pressure, heat absorbed or evolved at constant volume. Delta N number of moles अभी बताया था last slide में, that is number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants. R is universal gas constant and T is temperature. ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है. ठीक है. डेल्टा N का एक प्रॉब्लम करा देता हूं मैं आपको यहाँ पे छोटा सा. फॉर एग्जाम्पल आपको आ गया N2 plus 3H2 वाला इक्वेशन गिव्स यू अमोनिया, सबने सुना हुआ है, और बोला इसका डेल्टा N बताओ. तो डेल्टा N हो गया इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? 2. रिएक्टेंट्स कितने हैं? तो आप -2 फॉर्मूले में पुट अप करोगे. फॉर एग्जाम्पल आ गया आपको H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस. तो डेल्टा N कितना हो गया? 2 minus 2 0. ठीक है. यह आपको आ गया यहाँ पे C plus O2 gives CO2. अब ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं 1 minus 2 कर देते हैं. नो, कार्बन प्लीज रिमेंबर इट्स अ सॉलिड. सो डेल्टा N is equal to 1 minus 1 0. It is only applicable for gases, not applicable for solid. So ये 3 सिंपल आपको इक्वेशंस दिए हैं जहां से आप डेल्टा N निकाल सकते हो. एंड दैट आल्सो गिव्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U. कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U कब होता है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U व्हेन डेल्टा N इज 0. डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U व्हेन डेल्टा N इज ग्रेटर देन 0. एंड डेल्टा H इज लेसर देन डेल्टा U व्हेन डेल्टा N इज लेसर देन 0. तो जो बोला है वो अपने वर्ड्स में लिख लेना. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर entrance exam. So please copy. Then we go for second expression. Now second expression is at constant volume. So we know what we know. What is the general equation? General equation is delta H is equal to delta U plus P delta V. जनरल क्यों है भाई? अरे प्रेशर हर वक्त कांस्टेंट ही रहता है. अब यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया. दैट मीन्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर एक्सप्रेशन आ गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, तो जनरल एक्सप्रेशन तो ऊपर वाला ही लेना है. एट कांस्टेंट वॉल्यूम V1 is equal to V2, therefore delta V is equal to 0.
तो अगर डेल्टा वी जीरो है तो पी डेल्टा वी भी जीरो हुआ। इसका मतलब एक्सप्रेशन खत्म हो गया। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, याद रखना। और तीसरा एक्सप्रेशन है अंडर IRE ऑफ एन आइडियल गैस। याद करो IRE का फुल फॉर्म क्या बोला था? IRE का फुल फॉर्म बोला था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है मतलब प्रेशर में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ही, राइट, ऑफ एन आइडियल गैस बोला है। सो एज वी नो, इस बार डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। इस बार P डेल्टा V क्यों नहीं लिया सर ने? क्योंकि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस में देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रेशर एंड दैट डिफरेंस मस्ट बी वेरी 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 स्मॉल। बट है तो सही ना, P2 is not equal to P1, so it is not at a constant pressure. That's why pressure also I have written P2 and P1। डेल्टा U तो जीरो पक्का है। क्यों पक्का है? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है और सबको मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब डेल्टा T जीरो एंड डेल्टा U ऑल्सो जीरो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई कि आइडियल गैस है तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ सबको मालूम है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। बॉयल्स लॉ ऐसा बोलता है, यस, आइडियल गैस के लिए बोलता है, राइट। दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर है ही, इसका मतलब P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो डेल्टा एच कितना हो गया? डेल्टा एच हो गया 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डेल्टा एच इज 0। डेल्टा एच इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट बिकॉज द प्रोसेस इज अंडर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, इसलिए डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 यहां पे आया है। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया एंथैल्पी का। एंड एंथैल्पी जब आप कर रहे हो तो एंथैल्पी एक बड़ा कंसेप्ट है, पहले बेसिक कंसेप्ट कर लो। इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। I hope everyone enjoyed. Bye.